अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में किसी की जान लेना इंतहाई मामूली इकदाम होता जा रहा है। ऐसा ही एक वाक़या शादरा के इलाके में पेश आया, जहां पर मुलजिमान की इंफॉर्मेशन पुलिस को देने की पादाश में एक 23 साल के नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान ने मकतूल को क्यों कत्ल किया, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है और मकतूल के वर्सा कातलों के हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। शादरा के इलाके में दिन दिहाड़े एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और मुलजिमान बआसानी फरार भी हो गए। इब्तदाई तौर पे यही लगा कि शायद डकैती मज़ामत पर कत्ल किया गया, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो इंतहाई मामूली वजह निकली कत्ल के पीछे। पुलिस ने इस कत्ल के अंदर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान का मकतूल के साथ क्या ताल्लुक है और क्यों कत्ल किया, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मामा यूसुफ। यूसुफ कहाँ के रहने वाले हो तुम? नासोपर हैं? नासोपर। नैन सुको। किसको कत्ल किया तुमने? इमरान पट्टी। कौन है वो? यार दोस्ती हमारा। कितने अरसे से जानते हो उसे? साल डेढ़ हो गया। इकट्ठे रहते थे कि क्या? नहीं, घर नाल ना फिर मसलन गुआड़म साए। अच्छा जी की को डकैतियां शिकैतियां इकट्ठे करते रहे हो कि? नहीं सर, डकैतियां डुकैतियां नहीं इकट्ठियां करते रहे। जरा ना मैनू कहंदा ਸੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਵੇਚਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਚਰਸ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਰਸ ਵੇਚਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਰਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਾਨ ਬੇਂਗੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸੁਖੋ ਘਰ ਬੇਂਗੋੜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2 ਵਾਰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, 2 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਇਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚਰਸ ਵੇਚਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਚ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰੀ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰ, ਫੋਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਚਰਸ ਵੇਚਿਆ ਕਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਪੇਰਾ ਚਪੂਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਂ ਸੁਖ ਬੇਂਗੋਟ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੇਂਗੋਟ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਰਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਵਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2ਵੇਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 6 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, 2ਵੇਂ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਆਪ ਮਾਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਂਗੋਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ 900 ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, 2ਵੇਂ ਵਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਸਤੌਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 900 ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਰਾਹ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਲੱਭ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੀ। 2 ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਨੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਵਾਰਸ ਅਗੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਰੀਚਾ। ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋ ਨੂਰਸ਼ਾ ਚੌਕੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2-4 ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿਕਟ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਸਰ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਫੜਵਾਇਆ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ? ਸਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ? ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰ 2 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ।
तू शादीशुदा है? नहीं सर। वो शादीशुदा सी? नहीं वो भी नहीं सर शादीशुदा। शादीशुदा नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो माँ प्यो का किने इकलौता बच्चा सी हो? नहीं 2 भाई सन उन्होंने। अच्छा, यह कौन है? ये मेरे नाल दा सर, ये मेरे कौन है? नाल ही सी। दोस्त है तेरा? जी सर। पैसे लैके इन्हें तेरे नाल कत्ल किया नहीं या नहीं सर उन जी। हाँ जी। हाँ जी सर। तेरा की नाम है? अस्सलाम वालेकुम। इशफाक। इशफाक। हाँ जी। किसको कत्ल किया तुमने? इमरान पट्टी को। क्यों? बस इसका ही कोई झगड़ा था इसलिए। झगड़ा उसका था तो तुमने क्यों कत्ल बस किया? मुझे तो इसने कहा बाइक चलानी है आपने, बस मैंने ही उसको कत्ल करना है, आपने बाइक चलानी, बस मैंने बाइक चलाई है। नहीं, जब तुम्हें उसने ये बता दिया था कि वो किसी बंदे को कत्ल करने जा रहा है तो तुमने उसका साथ क्यों दिया? बस जहन नहीं था इसलिए। मैंने तो काम पर निकला था, इसने कहा ऐसे ऐसे करना है तो मैं इसके साथ चल पड़ा। यार उसने तुम्हें कौन सा कहा कि बर्गर खाने जा रहे हैं? उसने तुम्हें बंदा कत्ल करने का कहा ना कि हम बंदा कत्ल करने जा रहे हैं। मैंने समझा ये मजाक कर रहा है, तो झूठ बोल रहा है, वैसे ही कह रहा था कि ऐसे कर देना ऐसे कर, और मुझे सच नहीं क्या पता। क्या क्या कहता रहा तुम्हें ये कत्ल करने से पहले? मुझे यही कह रहा था मैंने मार देना इसे, ऐसे कर देना ऐसे। मैंने कहा मजाक करता है। नहीं, क्यों झूठ बोल इसने कहा कि मार देना? क्या हुआ क्या था? पता नहीं, इसका आपस का ही कोई मामला हैगा था। तुम इसको कब से जानते हो? मैं इसको तकरीबन साल 1.5 साल और जो कत्ल हुआ उसको कब से जानते हो? उसको भी साल से तकरीबन साल तो 1.5। ये आपस में दोस्त थे? हाँ जी। आप वो क्या करता था जो कत्ल हुआ है? वो पहले तो मतलब कि फारिग ही होता था, चर्च वगैरह का कहता है काम करता था, और मुझे नहीं पता कौन सा काम करता था। मतलब कि वैसे ही मुझे तो बाजार में सलाम दुआई होती थी। तो और कोई काम इसकी साथ तुम्हारी दोस्ती है, जब इसने बंदा कत्ल करना था तुम्हें साथ लेके गया, इसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा कि उसको क्यों कत्ल करना चाहता है? बस यही बताया था उसको मार देना बस यही बताया, और कोई बात नहीं। और कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। तुम क्या करते हो? मैं गत्ते वाली फैक्ट्री में काम गत्ते वाली फैक्ट्री में? तो तुम्हें जब इसने कहा कि ऐसे उसको कत्ल करने जा रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग नहीं चला कि तुम पकड़े जाओगे और कत्ल के अंदर सजा? नहीं, मुझे तो ये नहीं था पता कि इसने सचमुच कर देना या कोई मसला है। मैंने तो कहा था झूठ बोल रहा है, वैसे ही कह रहा है तो मैंने ऐसे कर देना ऐसे बस। तुम भी इसके साथ पकड़े गए थे शेखुपुरा पुलिस पे? नहीं, मुझे तुम्हारे पे कोई डकैती वगैरह का कोई पर्चा? मसला कोई पर्चा नहीं तुम्हारे पे? आज तो कोई वारदात वगैरह? नहीं, कोई नशा वगैरह करते हो? नशा नहीं, बस सादा सिगरेट। सादा नशा? सिगरेट। सादा सिगरेट। कोई नशा नहीं? तू भी करता? सर कोई नशा नहीं करता। बस सर सादा सिगरेट। मुल्ज़िमान की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। इब्तदाई तौर पे जब मुल्ज़िमान पकड़े गए थे तो इन्होंने पुलिस को भी यही बयान दिया था कि ये शेखुपुरा में जब पकड़े गए थे तो इनको शक था कि मकतूल ने इनकी रखी की। डीएसपी शादरा सर्कल हमारे साथ मौजूद हैं, आगा नासिर इनसे जानते हैं। नासिर साहब, इब्तदाई तौर पे जब ये बंदा कत्ल हुआ शादरे की हदूद में तो यही एक तासर गया शायद डकैती मज़ामत पे कत्ल हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद आपने एक मुलजिम को पकड़ा और फिर 2-3 दिन के बाद दूसरा मुलजिम भी आप लोगों के हाथे चढ़ गया। असल वाक़या क्या है, क्यों कत्ल किया गया? असल वाक़या यही है कि वो रिक्शा चलाता था, रिक्शे पर आ रहा था। ये जो मेन कल्पर्ट है इसने उससे लिफ्ट ली, पीछे बैठा और वहाँ पर आके मौके पर आकर फायर मारा गया। वो जो तासुर था जी डकैती के दौरान ऐसे कोई हालात मौके पे हमें नहीं मिले, और जब हमें पता चला कि ये अशफाक जो है ये उसको पिक करके लेके गया तो उसी वक्त हमने उसको ट्रैक डाउन करना शुरू कर दिया, और हमें बाद में जाके ये हालात पता चले कि दरअसल ये कोई डकैती की वारदात नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर था। जो अभी आपने मुल्ज़मान से सुना है कि उन्होंने सिर्फ इसलिए किया, इनको ये शुबा था कि जो मकतूल है उसने इनकी मुखबरी करके इनको मादी में कहीं पकड़वाया था। छोटी मोटी वारदातें जो स्ट्रीट क्राइम ये करते थे उसके सिलसिला में। इनके ऊपर कोई मुकदमे वगैरह हैं मुल्ज़मान के? जी, इनके बस फैक्ट्री एरिया थाना शेखुपुरा में इनका प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंशाल्लाह वो उन मुकदमात को भी मद्देनज़र रख के तफ्तीश को यकसू किया जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि इसके ऊपर उसने 2 दफ़ा कातलाना हमला किया था और इस कार के अंदर इसने कत्ल किया और दूसरा वो मंशियात फ़रोख्त करता था, इस चीज़ की कोई तस्दीक वगैरह हो सकी? देखें, ये तो इसका वर्जन है, अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि वो वारदातों में इन्वॉल्व था या नहीं था, लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी जो जराइम पेशा सरगर्मियाँ हैं उससे वो आगाह पूरी तरह था। और ये बात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि उसकी इंटेरोगेशन के बाद इसको फैक्ट्री एरिया पुलिस वालों ने पिछली दफ़ा अरेस्ट किया था। अच्छा, जो मकतूल है वो भी पहले फैक्ट्री एरिया पुलिस ने पकड़ा था और उससे इंटेरोगेशन में उसका नाम उसकी है? इंटेरोगेशन की रोशनी में इसको पिछली दफ़ा गिरफ्तार किया गया था। तो इसको असल में यही राजी था। वो किस केस में गया था? वो स्ट्रीट क्राइम का केस था। ये सारी स्ट्रीट क्राइम? जी, स्ट्रीट क्राइम के ये साथी थे। तो इसने उसी रंजिश की बुनियाद पर कि वो अगर पकड़ा गया था तो उसको चाहिए था कि मेरा राज रखता, उसने बजाय इसके कि पुलिस को बता दिया। और ये बात जो ये कहता है कि उसने मेरे पर कातलाना हमला किया, ये रिकॉर्ड से अभी तक साबित नहीं हुई। ये जो दूसरा मुलजिम है इसका शरीक कातिल है, वो कहता है कि मैं तो समझा था ये मजाक कर रहा है कि ये कह रहा है कि मैंने उसको मार देना है और मैं तो सिर्फ इसलिए इसको साथ लेके आया था। इसका क्या इन्वॉल्वमेंट बीच में पाई गई? चले, ये अगर इसकी बात ये मान ली जाए कि ये उसको साथ लेके आया था, उसको पता नहीं था
तो लेके ना जाता। असल केस तो सॉल्व भी वहाँ से हुआ है कि जब हमें ये पता चला है कि इसको एक फलां मोटरसाइकिल पर बैठा फलां शख्स उसको मारने के बाद इसको लेके फरार हुआ है। बात तो वहीं से ट्रैक डाउन हुई है। सही। अगर इसकी बात मान ली जाए कि इसको ये पता नहीं था कि इसने इसको मर्डर करना है तो उसको वापस ही ना लेके जाता है। ये मुकम्मल तौर पर उसका सहूलतकार है और इन्वॉल्व है उसमें। इसकी क्या इंटेंशन हो सकती है? कोई इन्वेस्टिगेशन में सामने उसकी तो चले समझ आ गई कि उसको पकड़वाया, उसकी आपस दावत में दोस्ती और ताल्लुक और एक दूसरे का जैसे जराइम पेशा लोग एक दूसरे के साथ धड़ेबंदी करते हैं। डीएसपी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होती है क्योंकि वो ऑपरेशन को भी देख रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन को भी देख रहा होता है। आपका तजुर्बा भी कई दहाइयों पे, आपको समझ आती है कि इसकी कोई इंटेंशन और सिर्फ ये मोटरसाइकिल पे साथ ले जाए, बंदा कत्ल कराए और वापस लेके आ जाए, ऐसा कुछ होता है? ये क्या दोस्ती यारी इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई? देखिए, जराइम पेशा लोगों की आपस में टाइज होती हैं। इनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये ट्रेस हो जाएंगे। पुलिस के ऊपर अदम एतमाद है या इनकी चलाकी महारत थी? नहीं, ये पुलिस पर अदम एतमाद की बात नहीं है। असल बात ओवर कॉन्फिडेंस होना है। और जहाँ तक बात रहेगी कि ये इनकी आपस में टाइज के हैं, तो आप जानते हैं तमाम ये जो स्ट्रीट क्राइम वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका सारे का सारा क्राइम जो है वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकदारी निभाते हुए ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। आगा साहब, इतनी मामूली बात के ऊपर के इसने इन्फॉर्मेशन दी कि और मैं पकड़ा गया, इस बात पे कत्ल होना आपके नज़दीक कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, क्रिमिनल टेंडेंसी जो है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी को आप किसी भी जगह पर महदूद नहीं कर सकते। एक शख्स बहुत बड़ी बात को भी बर्दाश्त कर जाता है और दूसरा शख्स जो है उसी छोटी सी बात पर कत्ल कर देता है। तो अदम जो बर्दाश्त और जो ह्यूमन क्रिमिनोलॉजी जो हमें ये कहती है कि कोई भी इंसान किसी भी हालत में मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं और जिन सोसाइटी के जिन सेगमेंट्स में क्रिमिनल टेंडेंसी होती है वो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने फड़वाया सी, मुझे इसने गिरफ्तार करवाया था। आप देखते हैं कि रोज़ाना लोगों को सिर्फ इस शुबे में मार दिया जाता है, ये पुलिस को मुखबरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। हालांकि मुखबरी नहीं होती। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि एक शख्स पकड़ा जाता है, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कहता है जी मैं नहीं हूँ, लेकिन फ़लाँ बंदा जो है वो ये काम कर रहा है। सही। तो इस तरह के हालात होते हैं हर क्राइम स्टोरी में। बहुत शुक्रिया। डीएसपी शादा सरकार आगा नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है। दूसरी जानिब आपने मुलजमान का इंटरव्यू भी सुना। असल जो वजह अनाद है वो यही बताई जा रही है कि मुलजमान जब शेखुपुरा में पकड़े गए थे तो इनको ये था कि उसके कहने पे इनको हवालात की हवा खानी पड़ी और ये भी रन चला आ रहा था। और जिस तरह से आपने आगा साहब की गुफ्तगू सुनी कि क्रिमिनल टेंडेंसी के जो मुलजमान होते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझना बड़ा मुश्किल होता है और छोटी से छोटी बात के ऊपर भी वो बहुत सीवियरली रिएक्ट कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी बात को भी वो दरगुजर कर सकते हैं। इस केस के अंदर भी अपेरेंटली यही हुआ है कि वो छोटी सी बात जो थी वो उसके दिमाग पे इतनी हावी हुई कि उसने इस शख्स की जान ले ली। मामूली सी रंजिश पर मुलजिमान ने 23 साल के नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसके बाद वो मौके से फ़रार भी हो गए। अब जबकि पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो दागते हैं और कहते हैं कि मकतूल जो था वो इनके ऊपर कातलाना हमला भी कर चुका हुआ था, मंशियात बेचने के लिए भी जोर डालता था और बहुत से इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जाते हैं। मकतूल के वर्सा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मकतूल की वालदा और भाई और एक ऐनी शाही जो है वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। माँ जी, क्या वकूआ हुआ है? आपको क्या पता चला? बेटे को किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया? बस कोई साड़ी दुश्मनी नहीं सी, कोई लड़ाई नहीं सी, कोई झगड़ा नहीं सी। मेरा बच्चा मेहनत करन जांदा पिया सी, रिश्कत ते अगे खलोता सी तो उन्हें कहंदा सी मैनू पा ला रिश्कत, मैनू तो बाहर सड़क ते ला दी, उन्हें पा दिता। उन्हें आखिया इत्थे मेरे अगे आ ते बह जा मेरे नाल मंगर, कहंदा नहीं नहीं मैं राह च लै जाना। छाल मार दे विच बह गया, तू निकलिया ते मेरे बच्चे नूं जी सिर वाला मारिया सी फैल। फिर उन्हें कंडे च हत्थ सुकेले ने सिर वाला मारिया सी। एक बारी वो कहंदा हाल मैं ही मारिया गया, मैं ही मारिया गया। उन्हें तू फिर और ला दिते, फिर नहीं मेरा बच्चा उठा किस लिए, फिर उन्हें मारिया, फिर उन्हें मार दिता। और ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਇਆ ਦਾ ਦਾਈਓ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਆਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਆੜ ਮੱਥੇ ਘਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ, ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਠੰਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਲਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਠੰਡਾ, ਮੈਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫਦਾ ਦੇਣੀ, 1-2 ਫਦਾ ਦੇਣੀ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੋਲਾ ਨਸੂ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਰਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਆੜ ਮੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਤਿਲ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਟਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਤਲੇ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਬਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾ ਰੋਜੀ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਕਾ ਬਣਾ ਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੋਜੀ ਪਕਾ। ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। बड़ा बेटा था? हाँ जी, ये बड़ा मेरा बेटा सी। यार आपको क्या पता चला आपके भाई के कत्ल के बारे में? जैसे मुलजमान कहते हैं कि जो मकतूल था वो उनको नशा बेचने के लिए कहता था और कत्ल करने की भी कोशिश करता था, इसलिए उन्होंने इसको कत्ल किया। आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं सर, कोई नहीं सर, ऐसा कोई नहीं ना। ये जो बोल रहे ये झूठ बोल रहे हैं सर। ये हमारे साथ रहा ना दूसरे कमरे में। अच्छा। ठीक है, सेंटर में दबा रहे, इनका अलग हिसाब किताब था, हमारा अलग हिसाब किताब था सर। इसलिए ये जो भी अमलेदारी थी, जो भी ना ये भी दोनों माँ बाप रहते थे, हम भी दोनों माँ बेटा रहते हैं। तो इसलिए सारे वो ना इसकी दोस्ती ना लानी न देनी, तो मल्लेदारी तो फिर इसलिए ना तो चलो। क्यों मुलजमान ने आपके भाई को कत्ल किया? आपको क्या समझ आती है? सर मुझे ये समझ आती है इसने जी किसी कहने पे जी कत्ल किया। ठीक है, ये जो ना तो बोल रहे, ये झूठ बोल रहा है। हमारा भाई ना तो पंप पे काम करता था, उसके बाद वो कोरोना आ गया, फिर काम छोड़ दिया। हमारा बाप भी बीमार रहा था। किसी के कहने पे आपके भाई को क्यों कत्ल करेंगे ये लोग? पता नहीं सारे ना तो मुझे पता ही नहीं, इससे पूछे सर। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ? ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ 3 ਦਫਾ ਦਵਾਈ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ, ਉਹ ਜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਆਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ जाना आना उरा पर। मैं भी फिर डरती चुप कर गई। आपके भाई ने कोई इनके साथ कोई लेन देन का तनाजा तो नहीं सर, नहीं सर कोई लेन देन। आपके भाई ने इनको पकड़वाया था पुलिस वालों को? भाई ना जो हमारे भाई ने नहीं पकड़वाया था, पता नहीं। ये पहले जी चोरी डकैतियाँ करते थे सर। ठीक है, पहले ये पकड़े हुए थे। हमारा पहले जी ना दे पकड़े हुए थे। ठीक है, जो जिस वक्त ये पुलिस ने इसमें कार में छापा मारा, ठीक है, मैं भी कार था, मेरा भाई भी कार था, मेरी वालदा भी कार था, हम उधर सोए थे। मुझे नहीं पता, इसलिए हम इसका कोई नहीं ना किसी को बताया, या पुलिस को या कि किसी को भी नहीं, ऐसा ना किया। वो कहते हैं कि जब शेखपुरा पुलिस ने इनको पकड़ा तो आपके भाई ने इन्फॉर्मेशन दी थी। सारे ये जो बोल रहे ये झूठ बोल रहे सर। जो मंशियात का इल्जाम लगाना कि आपका भाई मंशियात बेचता था और इनको भी बेचते सर कोई ऐसी मसला ना नहीं है। हम सर जी ये जो कह रहे हैं ना, ये सब झूठ है। आपका भाई क्या करता था? हमारा पंप से बेरोजगार हो गया था, गुजर बसर कैसे कर रहा था? फिर ऐसे ना दे, फिर वो हमारा साथ भाई है, ठीक, उन्हें बोला भाई चलो हमारी जगह इधर रेंट बना लें, गाड़ियाँ को, रिक्शे का, ठीक है, चलो इधर। हमारा दिल नहीं मानता, मैंने कहा नहीं भाई, वो भी हमारा भाई बड़ा, कोई मसला नहीं। तुम आप इधर घर
ठीक है, कोई काम मिलता है अच्छा सा, कोई वो वजनी काम नहीं करता था, कोई शुरू से लग के ये पंप पे काम करता था ना, अटक ये पंप लड़का पे। कौन है? ये सर उनके साथ थे सर, किनके? ये इमरान भाई के, जो इमरान हाँ दोस्त है जी, उनका? जी ये हेल्पर है सर। ओए, माइक जिस दिन इमरान कत्ल हुआ है आप उस दिन उसके साथ थे? जी, मैं क्या साथ हुआ था। उस दिन, आपने क्या देखा? मैं यही हम उधर से घर से निकले हैं रिश्का लेके, जिन दुकानों का माल लेने जा रहे थे। अच्छा। उधर से हमने रिश्का मोड़ा है तो आगे से ही वो दोनों आए हैं, ये जो जिन्होंने कत्ल किया है, ये आगे हमको मिले हैं, जफ्फी जुफ्फी डाली है हमसे, सलाम दुआ लिया है, फिर ये हमसे चले गए हैं, हमें नहीं पता फिर कहीं गए हैं। हम जब आगे 10 मिनट बाद हम वहाँ से निकले हैं, आगे आए बुद्ध बाजार, ये दोनों खड़े हुए थे मोटरसाइकिल पे, एक आगे आगे जा रहा हमारे, तो उसने कहा मुझे भी साथ बिठा लो। उसने कहा इधर आगे आ, जो मुझे कहता वो पीछे चला जा, उसने कहा नहीं मैं पीछे ही सही हूँ। वो पीछे चढ़ के बैठ के आगे थोड़ा सा गए हैं, उसने पता ही नहीं लगने दिया, मैं मोबाइल के आरे लगा हुआ था, टच मोबाइल तक बिल्कुल तो कनेक्ट किया था डब्बे, मैं क्वाली के आरे लगा था और मुझे नहीं पता था इसने किस टाइम फायर मार दी उसको। फायर मारे ने उसे उतरा पीछे से, मेरे से मोबाइल भी उसने छीना, छीन के तो मोटरसाइकिल पे बैठ के भाग गए थे। तो पता नहीं चला कि तुम्हें कि क्यों उसने कत्ल किया इमरान को? नहीं मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहा उसने? नहीं। तुम्हें कोई मारा मुरा नहीं उसने? नहीं। बस उसी को कत्ल किया चले? हाँ जी, मेरे से मोबाइल छीना तो भाग गए। और जो दूसरा जब यहाँ पे आया हवालात में, जब उसको लेके आए हैं, उस टाइम उसने मुझे बोला है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तू बच गया, गोली आस फंस गई थी, ये तो तुम्हें भी मार देना था, सबूत कोई नहीं से छोड़ना हमने। बहुत जो धमकियाँ दूसरा मुझे। लड़का था उसने क्या किया? किसने? जो वो मुलजिम के साथ दूसरा पकड़ा? वो मोटरसाइकिल चलाने पे ही था। मोटरसाइकिल पे लेके हाँ आया? जी, तो जब हमें पहले तुम मिले, कब से इमरान के साथ काम कर रहे हो? मुझे यही हफ्ता ही हुआ उसके साथ ही। कभी इमरान ने इनके बारे में कुछ बताया? नहीं कोई बात नहीं, वो उस दिन आए, ये तकरीबन कोई 5-6 महीने बाद आया उस दिन ये गाँव में। हाँ। नहीं तो पहले ये कब आया था, जब ये डकैतियों में पकड़ा गया था ना, उसके बाद ये गाँव नहीं आए, मकान भी छोड़ गए थे वहाँ से, सही। ये उसी दिन ही आया था। सही। अब हमें क्या पता था इसने ये वारदात डालने आना, क्या करना क्या नहीं, हमें आगे मिला भी है। मां जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? मैं की कर सकती मैं बस यही कहनी आ मेरा बच्चा करू ना आते उठते निकलिया बाहर तो बस इन्हें मेरा नौजवान बच्चा गरीब नहीं दा फकीर नहीं दा ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜਕ ਵੀ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਬਸ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਕਿਦਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਅੰਦੇ ਖੱਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਯਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੈਣ ਸੋਗ ਦੇ ਸਾਹਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵੇਖੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਮੋਏ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਪਾਲਿਆ ਸਹੀ ਚਲੋ ਪਾਲਿਆ ਅਸੀਂ सर असी जी अपील करना चाहते हैं जी अपना गवर्नमेंट से और सारे मुलाजम से सारे जी अपील करना चाहते हैं जी सानू जी इंसाफ मिलिया जाए असी जी इन्हां जी माफ़ी नहीं देनी असी जी इन्हां नाल जी ना दा जिस तरह इन्हां साडा बच्चा मारिया सी जी इन्हां दोनों जी सजा मौत देनी सर सारे इन्हां दोनों दा इरादा सी सर इन्हां दोनों दा रायल सी सर सारे पिछले ने पीछे जेड़ा बैठा सी जी दुश्मन उसने बोला सख्त से सख्त सजा आप चाहते हैं? जी हाँ जी सख्त सजा चाहते हैं सर। आप मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब मकतूल के बुरसा भी यही कह रहे हैं कि इनको नहीं मालूम कि इनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया, ना तो कोई लड़ाई हुई थी और ना ही कोई लेन देन का तनाज़ा था। और जैसे मुलजिम कहता है कि ये मंशियात का कारोबार करते थे, इनका कहना है कि इनका भाई तो पंप के ऊपर मुलाजमत करता था और इनको अभी तक ये नहीं मालूम कि इनके बेटे को क्यों कत्ल किया। लेकिन पुलिस को चाहिए कि वो तफ्तीश करे और असल मुहरिक आज वो सामने लाए और सख्त से सख्त सजा दिलवाए।
जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर अगर उसकी वजह देखी जाए तो वजह यही है कि मुलजिमान को ये था कि जब शेखुपुरा पुलिस ने इनको पकड़ा तो इस मकतूल ने शायद उसकी इंफॉर्मेशन जो थी लीक की थी, जिसकी वजह से उनको जेल की हवा खानी पड़ी और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर उन्होंने एक मासूम की जान ले ली जो अपनी माँ का वाहिद सहारा भी था और वही कमा कर अपनी माँ को खिला रहा था। हमारे साथ एसपी ऑपरेशन सिटी हसन जहांगीर वट्टू साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस किस्म के वाक़यात जो बहुत ज़्यादा रूनुमा होते हैं कि लोग दिल में खलिश रख लेते हैं और उसके बाद किसी न किसी की जान ले लेते हैं, ऐसे वाक़यात क्यों माशरे में बढ़ते जा रहे हैं। वट्टू साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इस केस के अंदर एक जवान 23-24 साल के शख्स की इसलिए ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया कि मुलजमान को ये शुबा था कि शायद इसने पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन दी है और पुलिस इसके कहने पर गिरफ्तार की। क्या कहेंगे ऐसे वाक़े के ऊपर? जी देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है। ये 3 बच्चों का बाप भी है और ये एक मतलब मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाने वाला एक आदमी था और इसने जो इन्फॉर्मेशन एलिजिडली इन्फॉर्मेशन दी, अभी वो भी हम तफ्तीश कर रहे हैं, वो क्लियर होगा कि उन्होंने इसको आया शक पे मारा है या वाकई इसने इन्फॉर्मेशन जो है वो दी भी थी इस हद तक कि वो इनको जो है उन्होंने करवाया था, पकड़वाया था वहाँ पे। तो ये देखें, अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह से है और हमें हमारे मुल्क के अंदर थोड़ा विटनेस प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमारी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सोर्स हमारी आवाम ही होती है। आपने देखा है अक्सर लोग केसेस के अंदर गवाह बनने को तैयार नहीं होते। जब एक सड़क के ऊपर किसी बंदे को मार दिया जाता है तो आम तौर के ऊपर कोई सामने गवाह आता नहीं है, वो डरते हैं प्रोसीजर से और उनको इस बात का डर होता है कि कल को उनको टारगेट किया जाएगा। तो ये एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की और इन केस अगर कोई इन्फॉर्मर बन जाए फिर वो अंडर थ्रेट तो होता ही है, लेकिन इसके बगैर देखें क्राइम भी कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। हमें अगर 1 मिनट के लिए आपकी वाली बात मान ली जाए कि इसने उनकी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये फलां केस के अंदर इन्वॉल्व थे और पुलिस ने शेखुपुरा पुलिस ने उनको आके पकड़ लिया, अगर ऐसा शख्स पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, अव्वल तो हमारे यहाँ पे विटनेस प्रोटेक्शन है ही नहीं, अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है तो क्या आप लोग इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि उस बंदे की ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए? देखें, जो विटनेस होता है कोई किसी भी इंसिडेंट का, अगर वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पुलिस को देता है तो उसकी आइडेंटिटी को, उसके तमाम तर यानी इन्फॉर्मेशन को सीगा राज में रखना ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हम रखते हैं। 15 की जब कॉल्स आती हैं तो 15 का जो कॉलर है अगर वो बताता है किसी इंसिडेंट के बारे में, उसकी आइडेंटिटी हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो ये सिर्फ उस केस के अंदर होता है जब एक बंदा वाकई उसमें गवाह बन जाए, किसी केस के अंदर FIR के अंदर वो गवाह भी बन जाए, ठीक है, वो फिर एक पब्लिक चीज़ हो जाती है। लेकिन जब हमें कोई बंदा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हम कभी भी शेयर नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं और हम उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अरेस्ट करने की हद तक हम उसे यूज़ करते हैं। इस केस के अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, ये इस तरह से है कि उन्होंने शक की बेसिस के ऊपर कि इसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, मतलब जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, जो डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं, उनके माइंड में ये होता है कि यार अगर हमें कोई पकड़वा सकता है ना तो हमारा कोई करीबी दोस्त ही हमें पकड़वा सकता है। हसन साहब, जैसे अभी आप सरगोदा से आए हैं और इन्वेस्टिगेशन का आप वहाँ पे देखते रहे हैं, लाहौर में आए हैं, ये वाला मुलजिम जो है, जो मकतूल है, इसके ऊपर सिर्फ एलिजिडली ये इल्ज़ाम है कि इसने इन्फॉर्मेशन दी है और मुलजिमान कितने डेस्परेट हो सकते हैं इसका इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने के शक के ऊपर इसको कत्ल कर दिया। ऐसे मुलजिमान को फिक्स करने के लिए कि मैक्सिमम सज़ा मिले और ये माशरे के जो नासूर हैं ये जल्दी बाहर ना आए, कि इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है? देखें, हमारी जितनी मौसर इन्वेस्टिगेशन होगी, हम जितना अच्छा केस बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे और उसके अंदर हम इस चीज़ को सामने लेके आएंगे कि अगर आपने किसी भी किस्म के विटनेस को इस तरह से टारगेट किया, वो एक मैसेज जाएगा फिर तो आपको ना सिर्फ ट्रेस किया जाएगा बल्कि आपको मैक्सिमम सज़ा भी दिलवाई जाएगी, तो ये चीज़ डिटर हो जाएगी। हमारे पास क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जो पावर है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की पावर है, वही हमारी स्ट्रेंथ है और उसको हम जितना ज़्यादा ब्रुएकार लाएंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनके खिलाफ बनाएंगे और इनको सजाएं होंगी, तो ये चीज़ इससे कम हो जाएगी। दोनों मुलजमान को ऑपरेशन पुलिस ने पकड़ा है, दोनों से आप लोग इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और आगे जो फर्दर प्रोसेस है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। जैसे SHO साहब ने बताया, आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही वजह है या इसके अलावा भी कोई वजह हो सकती है? देखें, कोई भी डेस्परेट क्रिमिनल वो उसके अंदर, अब देखें ना, एक बंदा है, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है, वो 392 के यानी कि रॉबरी के केसेस करता है, वो और भी इस तरह के बड़े बड़े मामलात करता है,
तो वो बेसिकली ही कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रिपीट ऑफेंडर्स या डेस्परेट क्रिमिनल्स। तो वो किसी भी लेंथ तक जाएगा अपने गुस्से को निकालने के लिए, और उसको शक हमेशा उस बंदे पे जाएगा जिसको लगता है कि उसको पकड़वा सकता है या जो उसकी इन्फॉर्मेशन रखता है। तो बेसिकली अब इसने इन्फॉर्मेशन दी है नहीं दी शेखुपुरा पुलिस को, वो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन उसने ये ज्यूम किया कि इसने दी है, उसने अपने तौर पे माइंड बनाया और उसने आके इसको टारगेट कर विटनेस दिया। प्रोटेक्शन के लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, विटनेस प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले तो ये है कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसके अंदर जो भी विटनेसेस होते हैं, और ख़ासकर जो दुश्मनियों के केसेस हैं या इस तरह के मामलात हैं, उसमें जो लोकल SHO है, सबसे पहले तो ये है कि वो इस बारे में अवेयर होता है कि मेरे एरिया के अंदर या मेरे फलाने केसेस के अंदर फलाने विटनेसेस हैं, वो उनके साथ इन कांटेक्ट होता है, लाइजन बना के रखता है। अगर उसे किसी किस्म का थ्रेट आता है तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करता है। इवन जितने भी विटनेसेस होते हैं वो 15 की कॉल पे पुलिस इज़ जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे, वो पुलिस के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। जब उनको प्रेजेंट किया जाता है एज विटनेसेस, उनके साथ सिक्योरिटी डिटेल होती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही विटनेसेस को टारगेट किया जाता है। कुछ ऑड केसेस के अंदर विटनेसेस जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट हो जाते हैं, बिकॉज वो बड़ी इस लेवल की दुश्मनियां होती हैं, क्योंकि अगली साइड भी बड़ी डेस्परेट होती है, ठीक है, उनको टारगेट करने के लिए। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि विटनेस को हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये विटनेस नहीं था, इनको शक था, इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जहां तक बात है पुलिस के सीक्रेट इन्फॉर्मर्स की, तो हम अपने इन्फॉर्मर्स की आइडेंटिटी को सीगा राज में रखते हैं। 15 के ऊपर कोई कॉल करता है, मतलब मैं ये अवाम को आपके इस प्रोग्राम के तवसत से बताना चाहता हूँ कि आप इस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि अगर आप 15 पे कॉल करके हमें बताएंगे तो आपकी आइडेंटिटी लीक होगी। वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखी जाती है और वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती कि कॉलर कौन था। वो सिर्फ ऑफिसर को, जो रेलिवेंट ऑफिसर होता है, उस तक वो मैसेज आता है। जो आपका 15 का ऑपरेटर है उसको पता होता है, आपके सीनियर ऑफिसर्स को पता होता है। इसके अलावा ये नहीं होता कि उसकी आइडेंटिटी को लीक आउट किया जाए कि फलानी जगह पे इंसिडेंट हुआ है। तो इस चीज़ की तरफ से भी आप बेफिक्र हैं, हम यहाँ पे मौजूद हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी किस्म की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने से कभी गुरेज ना करें। मैंने इवन ये भी एक ट्रेंड देखा है कि मिसाल के तौर पे मैं ये भी आपके चैनल के तवसत से ये बताना चाहता हूँ कि सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट हुआ होता है तो उस बेचारे को लोग हाथ नहीं लगाते कि ये ना हो कि पुलिस हमें वो समझे कि आपने ये एक्सीडेंट किया है। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत पुलिस पूछगिछ करती है, लेकिन पुलिस को इतना एक्सपीरियंस है, हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जो ऑपरेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर है कि ये इंजरी किस तरह आई है, आपने मारा है या कोई मार के भागा है। और अब तो वो कैमरास भी अवेलेबल हैं और सारा वो सिस्टम अवेलेबल है, वो हमें पता चल जाता है। तो आपको आप इंसानी जान को बचाया करें पहले, उसके बाद ये सोचा करें। और पुलिस कभी भी किसी बेगुनाह आदमी को इस तरह से चलान नहीं करेगी। अगर खासकर आपने एक्सीडेंट के अंदर उसकी जान बचाई, आप उसे हॉस्पिटल लेके गए, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर 2 मुलजिमान हैं। एक मुलजिम का तो समझ आता है कि उसको रंजिश थी कि मकतूल ने उसकी इंफॉर्मेशन दी थी 392 के अंदर, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा, उसके मुताबिक मकतूल जो था वो इसको फोर्स करता था कि मंशियात जो है वो फ़रोख्त किया करे। इस हद तक तो ये समझ आता है कि उसने इसलिए इसको कत्ल कर दिया, और साथ ही साथ वो कहता है कि उसके ऊपर उसने मकतूल ने कातलाना हमले भी किए थे। लेकिन जो साथ एक लड़का है जो मोटरसाइकिल पर उसको बिठा के लेके गया और फिर वापस ड्रॉप किया, उसका ना तो मकतूल के साथ कोई लेना देना था, ना ही कातिल के साथ कोई लेना देना। दोनों के साथ उसकी यकसर सी दोस्ती है कि 1.5-2 साल से दोस्ती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कत्ल के अंदर साथ दिया। हमारे साथ माहिर कानून अफराद अली शाह साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 302 वाला तो समझ आता है कि उसने कत्ल किया, इसके ऊपर कौन सी सेक्शन लगेगी और इस किस्म के रुझानात क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं। शाह जी, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। 2 बंदों का आपस में डिस्प्यूट था, एक ने तैश में आके दूसरे को कत्ल कर दिया और अब वो पकड़ा भी गया। 392 का मुकदमा था जिसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन मकतूल ने दी थी। जो 7 बंदा है जो उसको मोटरसाइकिल पे लेके गया कत्ल करने के लिए और वापस लेके आया, दोनों के किरदार डिफाइन कीजिएगा कि दोनों के किरदार क्या बनते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि पहला तो वो है जो कि एक स्पेसिफिक मोटिव की वजह से कि उसको ये शक था या उसको ये
यकीन था कि इसने उसकी रैकी की है या इसने इसकी मुखबरी की है, जिस वजह से वो 392 में पकड़ा गया और उस सीक्वेंस में इस रंजिश पर उसने कत्ल कर दिया। ये तो डायरेक्टली एक केस है जिसमें एक आदमी ने किसी रंजिश की वजह से किसी का कत्ल कर दिया। अब उसके साथ जो दूसरा है वो बेसिकली फैसिलिटेशन के हवाले से, वो आनत है जुर्म या जिसे शरीक जुर्म कहते हैं। बेसिकली हमारा पेनल कोड जो आप अगर देखें ताज़ीरात पाकिस्तान, तो उसमें सेक्शन 109 जो है वो प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर अबैटमेंट और आप इसको ये समझ लें कि वाइकेरियस लायबिलिटी का जो हमारा चैप्टर है कि अगर एक आदमी उसका मोटिव से भी ताल्लुक नहीं था, उसकी डायरेक्ट रंजिश भी नहीं थी, लेकिन वो इस मेन कातिल के साथ मोटरसाइकिल पे उसको लाया भी है और सब्सिक्वेंटली आफ्टर अक्ररेंस वो उसको ले भी गया, तो ये बेसिकली इसने उसको फैसिलिटेट किया है। और फैसिलिटेशन की जो है स्पेसिफिकली कोई अपनी सज़ा नहीं है, जो मेन मुल्ज़म ने किया होता है वो ही सज़ा जो है वो इसको मिलेगी कि इसको उसका शरीक जुर्म समझा जाएगा। और शरीक जुर्म होने की वजह से 109 अगर साबित हो जाती है, अब इसमें प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है कि कल को इस किस्म के मुल्ज़मान ये प्ली लेते हैं कि जी हमें पता ही नहीं था कि वो कत्ल करने जा रहा है और सब्सिक्वेंटली ये अक्ररेंस हो गया और उसके बाद हम, लेकिन ये चीज़ प्रूफ करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, वो बयान में कतल कलामी माफ, जब उससे मैंने बात की तो वो कहता है कि मैंने कहा कि तुम क्यों गए थे, तो उसने कहा कि जी इसने मुझे कहा कि मैंने उस बंदे को कत्ल करना है तो मेरे साथ चल, और मैं इसको साथ इसलिए ले गया, मैं शायद मजाक कर, इसने कहाँ से कत्ल करना है तो मैं इसलिए साथ ले गया। बेसिकली ना अब ये मुल्ज़मान अपनी एक डिफेंस लाइन ड्रॉ करता है। अब इसके अंदर वो जाना क्योंकि मान रहा है और स्पेसिफिकली अब क्योंकि एविडेंसेस जो है मॉडर्न डिवाइसेस से कलेक्ट होनी शुरू हो गई हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज बनी होगी, कोई सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमराज ने कैप्चर कर लिया होगा, ये उसकी अब डिफेंस लाइन यहाँ से वो ड्रॉ करनी शुरू हो गया कि मुझे इसने बताया ज़रूर था लेकिन मैं मजाक में समझा। लेकिन ये पूरे तरीके से मजाक नहीं है कि एक आदमी के साथ चले, कत्ल करने तक तो इसको समझ आती है कि इसकी बात मानी जा सके, लेकिन जब कत्ल कर लिया और ये वहां से उसको लेके गया तो इसका काम बनता था ना कि ही हैज़ टू इन्फॉर्म दी पुलिस के जनाब इस तरह से इस आदमी ने ये कत्ल कर लिया, तो ये पूरा का पूरा उसके साथ इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और ये फैसिलिटेशन के सीक्वेंस में आता है और 109 की हद तक ये चार्ज भी होगा और 109 की हद तक सजा होगी। शाह जी, ये बयान उसका कि वो ये समझ रहा था कि वो मजाक कर रहा है और वो कत्ल नहीं करेगा, कितनी वेटेज रखता है? देखिए बेसिकली हमारा आर्टिकल 38 जो है कानून शहादत का, वो कोई भी स्टेटमेंट कि जब एक एक्यूज्ड कस्टडी में है वो उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता। नॉर्मली हमारे पास जो मिसल आती है उसमें पुलिस लिखती है कि मुल्ज़म हमारे सामने बयान नहीं है कि जी मैंने कत्ल किया है, मुझे माफ़ी दिलवा दें या मेरे से गलती हो गई। वो बेसिकली इसकी लेजिस्लेचर की मंशा ये है कि पुलिस मार पीट के भी बयान ले सकती है, तो पुलिस के पास कस्टडी में दिया हुआ बयान उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक्यूज के अगेंस्ट नहीं यूज़ हो सकता। लेकिन आर्टिकल 40 इसकी एक्सेप्शन देता है कि अगर कोई डिस्कवरी हो जाए, कोई न्यू फैक्ट आ जाए जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पहले अवेलेबल ना हो, इसके डिस्क्लोजर पे, जैसे अगर एक एक्यूज डिस्क्लोज कर देता कि जी लाश हमने फलान जगह दफन की और लाश मिल जाती, तो ये पुलिस के पास दिया गया स्टेटमेंट आर्टिकल 40 की एक्सेप्शन में आके एडमिजिबल हो जाता है। जैसे एक एक्यूज कहता है कि जी जिस पिस्टल से मैंने कत्ल किया था वो मैं बरामद करा सकता हूँ, होता ये कस्टडी में, लेकिन अगर पिस्टल वहाँ बरामद हो जाए तो ये एडमिजिबल हो जाता है आर्टिकल 40 के तहत और उस स्टेटमेंट पर उसको सजा दी जा सकती है। दोनों मुल्ज़मान को सजा के बनती है, एक के ऊपर तो 302 लगी, दूसरे के ऊपर आप कह रहे हैं? देखिए बेसिकली दूसरे की हद तक वाइकेरियस लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसमें प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है और कॉन्स्पिरेसी करने के बाद इसने जानते बूझते हुए फैसिलिटेट किया। अगर तो प्रोसिक्यूशन साबित कर ले तो 109 में इसको इक्वल सजा दी जाएगी, क्योंकि 109 की अपनी स्पेसिफिक सजा कोई नहीं है। अगर आप सेकंड स्केड्यूल देखें तो उसमें प्रोवाइड किया गया कि जो मेन एक्यूज को सजा होगी वही इसको सजा होगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन के केसेस नॉर्मली 109 वाले लोग इक्विट हो जाते हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट पीस ऑफ एविडेंस इतना मजबूत नहीं होता प्रोसिक्यूशन के पास कि जिस सीक्वेंस में अगर मुल्ज़म ने ये कहा भी कि हाँ जी मैं तो गलती से चला गया था, तो ये प्रोसिक्यूशन इसको यूज नहीं कर सकती। प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव देयर केस ऑन इंडिपेंडेंट करबरेशन ऑफ एविडेंस। उनको अपनी एविडेंस चाहिए, अपनी लेग्स पे अपना केस जो है वो प्रूव करना है, जो प्रोसिक्यूशन के लिए वाइकेरियस लायबिलिटी के केसेस के अंदर मुझे 20 साल हो गए 302 के केसेस कर
करते हुए। तो मैंने तो बहुत कम केसेस देखे हैं जिसमें 109 की हद तक प्रूफ किया जा सको, लेकिन वो होता ही है कि इससे मोटरसाइकिल बरामद कर ली होगी, वो मोटरसाइकिल की फर्द लगी हुई होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन ना फेल हो जाती है वाइकेरियस लायबिलिटी की हद तक एविडेंस कलेक्ट करते हुए। लेकिन अब जो मॉडर्न डिवाइसेस आ रही हैं, जैसे अगर किसी सेफ सिटी कैमरा ने इनको कैप्चर कर लिया आते हुए या जाते हुए, तो वो एक बड़ा मॉडर्न डिवाइसेस आर्टिकल 164 है आपके कानून शहादत का, जिसके तहत वो एडमिसिबल हो जाती है और आपके सेफ सिटी अथॉरिटीज एक्ट आया 2016 का। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो दोनों बिल्कुल। अभी आप देखें आपके सामने आबिद मल्ली वाला केस आप देखिए कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस था और उसमें डेथ सेंटेंस हुई है। तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहे और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है और अदालत में इनको बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। बहुत शुक्रिया। सैयद फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। शाह जी की एक बात फेंकी नहीं जा सकती कि मुलजिम जो ये कह रहा है, अब प्ली ले रहा है कि उसके साथी ने कत्ल किया और जब वो कत्ल करने उसको ले जा रहा था तो उसने सिर्फ ये समझा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने कत्ल कर लिया तो उसको वो वापस भी लेके आया। अगर सिर्फ वो मजाक समझ रहा था और उसने कत्ल कर दिया तो वहां पे उसको ड्रॉप करता और पुलिस को इतला देता, लेकिन उसने उसको बाकायदा फैसिलिटेट किया, कत्ल करने के लिए लेके भी गया और फिर वापस भी उसके घर छोड़ा, जिसकी वजह से उसकी इंटेंशन क्लियर होती है कि वो इस कत्ल में पूरा उसके साथ मुलविस। और जिस तरह शाहजी हमेशा कहते हैं कि अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो मुलजमान को सजा दिलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इमरान को नाहक कत्ल करने वाले दोनों मुलजमान इस टाइम हवालात की हवा खा रहे हैं, जबकि बुरसा को सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि मुलजमान पकड़े गए हैं और जिस तरह से पुलिस तफ्तीश कर रही है जल्द ही उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएगी। जबकि एक 23 साल के नौजवान को कत्ल करने की ताहाल पुलिस के पास कोई वजह जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई। मुलजमान मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बुरसा इसी बात पर मुतमईन है कि मुलजमान पकड़े गए हैं और अब कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।